Hello and welcome, friends. Today we are seeing the microprocessor 8085. Not microprocessor 8085. We are taking the brief introduction of microprocessor in this video. So let's get started. So microprocessor is basically the heart of modern technology. It will be used in each and every digital device, from the smartwatches to washing machine. In each digital devices, microprocessor is used. The brain behind digital device. आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी आपका सिस्टम है, डिजिटल डिवाइस है, उसका आप माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन बोल सकते हो. इट इज अ ब्रेन ऑफ एनी डिजिटल डिवाइसेस. ओके, आई होप सो आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, प्रीति बड़गुजर. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए. और हमने माइक्रो प्रोसेसर के ऑलरेडी एक दो वीडियोस डाले हुए हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के वीडियोस डाले हुए हैं. वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिए. सो मूविंग टू अवर टॉपिक, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर. सो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर एक स्मॉल साइज सिलिकॉन चिप है, विच इज इसको ही हम बोल सकते हैं इट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज अ आईसी. इन दिस इंटीग्रेटेड सर्किट देयर आर मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलेंगे. And this single chip will handle the various types of operations processes at the same time, so it is a versatile also. It is a programmable electronic device, so आप इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं. Okay, so microprocessor basically करता क्या है, it will perform the certain tasks based on the instruction provided to it. So जो भी instruction हम इसको provide करेंगे उसको क्या करेगा, वो perform करेगा. It will not only do the logical or arithmetical operations only, it will कंट्रोल दी ऑल द सिस्टम्स कनेक्टेड टू द डिवाइस. सो उन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर करेगा. नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. मेनली इसका कोर फंक्शन क्या है, क्यों हम इसको ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज इट विल मैनेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, इट विल परफॉर्म एंड हैंडल्स द ऑल द devices connected to the system with the help of clock signals, and perform the operations like arithmetical operations, logical operations, or the we can say that a comparison of data, control all the functions. Processor is also known as the brain of computers. So it will enables devices to process information and execute commands. So we can program the microprocessor through the set of instructions. So basically microprocessor क्या है, एक सिंगल चिप है, सिलिकॉन चिप, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, and that contains the arithmetical, logic and control circuitry necessary to perform the various kinds of functions. Key components of a microprocessor. So these three are the key components. There are many components, but these three are the main components of a microprocessor. First one is the arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit जो है, it will हैंडल्स दी ऑल दी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस. वो सब हैंडल करने का काम कौन करता है, ये एएलयू करता है. इसको हम शॉर्टली बोलेंगे एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, so it performs all mathematical operations like addition, subtraction, division, multiplication, etc., and handles the logical operations like comparison of data and operation or operation. This type of operation will be handled by the AL. Next is a control unit. It interprets the program instruction and directs all the other part of the microprocessor and the computer system to execute those instruction in the correct sequence. So basically जो भी आपके instruction है, वो जो भी आपके माइक्रोप्रोसेसर के और पार्ट्स है, उन सब में सिंक्रोनाइजेशन लाने का काम जो है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ताकि कोई भी क्लैश ना हो जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सिस्टम के अंदर क्रिएट ना हो, तो उसके लिए आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो काम करता रहता है. इट डायरेक्ट्स एंड सिंक्रोनाइजेस ऑल द ऑपरेशंस विद इन द माइक्रोप्रोसेसर एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक सिग्नल्स के थ्रू ये क्या करता है, आपके जो भी ऑपरेशंस है उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करता है विद इन द माइक्रोप्रोसेसर. एंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बीच में भी एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, ये देखने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है. रजिस्टर्स. नाउ द रजिस्टर्स वी कैन से दैट इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज विद इन द माइक्रोप्रोसेसर. सो माइक्रोप्रोसेसर के पास खुद का स्टोरेज है, उसको हम बोल सकते हैं इट इज अ रजिस्टर. एंड अगर हम 8085 की बात करें तो 8085 में रजिस्टर की कैपेसिटी है 8 बिट ऑफ डेटा. सो जितने भी रजिस्टर होंगे 8085 में, उनकी कैपेसिटी, हर रजिस्टर की कैपेसिटी रहेगी 8 बिट. सो इट इज अ स्मॉल एंड हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज एरिया, जो हम
जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म करते टाइम जो भी हमें डेटा लगने वाला वो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन रजिस्टर्स का यूज करते हैं. सो इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज area within the microprocessor. Okay, that will temporarily hold the data. Clock is also one of the key component of a microprocessor because clock will helps to synchronize all the operations within the microprocessor and the connected devices. How a microprocessor work? Microprocessor performs task in three basic steps. So basically आपको अगर परफॉर्म करना है एडिशन, ऑपरेशन और पर्टिकुलर डेटा, तो पहले तो आपको वो डेटा कोई भी एक रजिस्टर में रखना होगा. ओके, सो वो डेटा कहाँ से आएगा? अगेन यू आर फेचिंग दैट डेटा फ्रॉम द मेमोरी. ओके, और वो इंस्ट्रक्शन, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन भी आपका कहाँ पे रहेगा? मेमोरी में रहेगा. तो मेमोरी से आपको इंस्ट्रक्शन भी लेना है और आपको डेटा भी लेना है. वो दोनों हमने फेच कर लिया. फिर उस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता. जैसे हमने बोल दिया कि एड this data. Okay, so microprocessor will not understand add what kind of data. It will understand the language of only binary form, means zero and ones form language ही वो समझता है. So it have to first decode the instruction. ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? हमने लिखा था add, तो वो add को अपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आएगा और उसको फिर क्या करेगा? वो ऑपरेशन, व्हाट ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, उसको समझ में आने के बाद वो क्या करेगा? उसको परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ एएलयू. एएलयू के थ्रू वो एग्जीक्यूट करे. सो थ्री टाइप्स में हम बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्क है वो डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फेच, फेच मतलब जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो अपने ले लिया, डेटा बोल सकते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन, जो भी नीडफुल थिंग्स है वो हमने पहले फेच कर ली, फिर उसको डिकोड किया और बाद में उसको एग्जीक्यूट किया. देन यू विल गेट दी आउट. So these are the three basic steps to perform any task in microprocessor. Next, why are microprocessor are important? अभी अगर आप देखोगे तो microprocessor can perform a number of tasks. So it has no count कि ये particular task ही कर सकता है. So and it is the only small chip that can handle the many tasks at a time. And nowadays it will found in every digital device like your smartwatch, washing machines, laptop, desktops, smartphones, tablets, or any household machinery which operates on a microprocessor. रोबोटिक्स में तो रहेगा ही रहेगा. रोबोटिक्स में स्पेशल यूज होता है. मेडिकल इक्विपमेंट बहुत सारे जिनमें आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है यूज होता है, और गेमिंग कंसोल्स. ओके, सो मतलब नाउडेज अगर हम देखेंगे हर छोटी से छोटी चीज में, यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं कि जो भी छोटे बेबीज के टॉयज आते हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है. सो in every digital device there is a microprocessor which is working behind and handling all the tasks, all the processes, all the operations softly, एकदम smoothly task चल रहा है. So that's why the microprocessor is very important in today's पॉइंट ऑफ व्यू, इन टूडेज. और आगे चल के तो और भी इसके बहुत सारे वेरियस यूजेस आने वाले. जनरली सिलेबस में जो देखा जाए तो हमें 8085, और अगर हम इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करें तो वहां पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल का वो हम देखते हैं. ठीक है, बट अभी तो माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट लेवल चला गया है. मतलब अभी आपके मोबाइल की अगर बात करें तो वहां पे स्नैपड्रैगन स्क्वाड चिप आपके मोबाइल्स में होते हैं. सो नॉट ओनली इंटेल, various kinds of microprocessor are in market to handle various kinds of performance. तो परफॉर्मेंस बेस पे आपको अपना माइक्रो प्रोसेसर जो है चूज करना. ठीक है, नेक्स्ट सो कंक्लूजन क्या है? सो माइक्रो प्रोसेसर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी. सो आपकी जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम बोल सकते हैं कि इट इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक कंपोनेंट है ऐसे बोल सकते हैं. देयर इज अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हैज लेड टू फास्टर, स्मॉलर एंड मोर पावरफुल डिवाइस. अभी इसका साइज भी छोटा छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, बट इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो और भी पावरफुल होता जा रहा है. दे आर इसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर कनेक्टेड एंड ऑटोमेटेड वर्ल्ड. सो माइक्रो प्रोसेसर इज इसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी डिजिटल डिवाइस. आई होप सो आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.